Hi everybody, welcome to my second class on the basic maths. So today we will learn about numbers. Numbers. What is number? Or what are numbers? Numbers are the symbols which represent the quantity and counting and making calculations. Numbers are the symbols which represent the quantity and use in counting and making calculations. As an example, 1, 2, it goes beyond. These are what? The numbers which we use in our day-to-day life. Now, these whole number systems, these numbers are classified in different groups or different classes. And these classes, which we will learn in this class. So you see, my dear, numbers, it represents the whole number. That means all the numbers. Just like human being. Human beings, when somebody say human being, what we understand? There is so many classes. Baby, newborn baby is also a human being. The small kids, they are also human beings. The young, they are also human beings. The old, they are also human beings. Isn't it? But these all together, what we say? Human beings. Just like that. The numbers. 1 is also number, 2 is also number, 100, X crores. These all are what? All are numbers. But among these numbers, they have their some individual classes. They are classified in different classes. They are grouped in different groups. Now you see, here some numbers, these 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, these numbers are called the even number. And 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, these are called odd number. Now what is odd and what is even? You see, my dear, even number means which can be grouped or which can be divided by 2. These numbers are called prime numbers. We can divide by 2. That means the number, when we divide by 2, we will get the remainder 0. And the numbers which cannot be divided by 2 or which we cannot group in pairs, these numbers are called odd number. Now you see, suppose 2 is even number. 1, 2. How many birds I have drawn here? 2. That means one pair. Are you getting me? This means one pair. So this is even number. Again, 1, 2, 3. This is 2, this is 3. 3. These two, one pair, but one is left or not? One pair and one is left. So this is odd.
This is 3 is odd. Again 1, 2, 3, 4. 1 pair, 2 pair. Is there any one bird left? No. That means it is even. Again 1, 2, 3, 4, 5. This is what? 1 pair, 2 pair. One is left or not? So 5 is what? 1 is left. That means we cannot divide it by 2. We cannot group it or we cannot make it pair. That's why it is odd. Even number. Even numbers. Which are even numbers? I have already shown you the numbers which are exactly divided by 2. That means the numbers which can be divided by 2. That means when we divide by 2, the remainder will 0. When we divide it by 2. Example you see, examples 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, etc. ये जितना भी नंबर दिया हुआ है यहाँ पे दिया गया है, ये नंबर्स सब 2 से डिवाइड किया जा सकता है. इसी 2, अगर 2 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर 0. दैट मीन्स एग्जिट डिवाइजर है, 2 से एग्जिट डिवाइड कर सकता है हम लोग. 4 को भी हम लोग एग्जिट डिवाइड कर सकेंगे, 2 2 जाओ 4, रिमाइंडर 0. 12 2 से डिवाइड कीजिए, 2 6 जाओ 12, रिमाइंडर 0. तो ये सब क्या है? ये सब इवन नंबर. आर यू गेटिंग मी? नेक्स्ट नंबर, एक चीज याद रखिए आप लोग, जो भी नंबर अगर हम लोग 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 रहेगा तो वो नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? इवन नंबर, चाहे जो भी हो. एक चीज याद रखिए, हम लोग को कैसे पता चलेगा ये ऑड है या इवन नंबर है? सिंपल, जस्ट याद रखिए, अगर 2 से डिवाइड होता है तो ये इवन नंबर, अगर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो वो ऑड नंबर. बहुत बट समटाइम्स आप लोग को बहुत बड़ा नंबर भी दिया जा सकता है, 2 4 6 8 9 5 7. दैट मीन्स 24,68,958. ये ऑड है ना, इवन है? हम लोग को कैसे पता चलेगा? हम लोग नहीं बता सकेगा ना, इतना बड़ा नंबर. छोटा छोटा नंबर को तो हम लोग ओके 4 को 2 2 4, रिमाइंडर खत्म, 0. 2 3 6 हम लोग बता सकेंगे. लेकिन इसको कैसे पता चलेगा ये ऑड है ना इवन नंबर? तो इसको पता करने के लिए हम लोग को कुछ पॉइंट्स वी शुड कीप इन आवर माइंड. इसको याद रखिए आप लोग. इफ द नंबर ends in 0, 2, 4, 6 and 8, then these are even. That means अगर कोई भी नंबर, जितना भी बड़ा नंबर ना हो क्यों, अगर लास्ट में एंड में मीन्स वंस प्लेस में अगर 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो नंबर क्या होगा? इवन नंबर. क्लियर? दिस नंबर इज इवन और नॉट. अगेन these numbers are even numbers or not? कैसे पता चलेगा हम लोग को? तो सिंपल, जो हम एग्जांपल में आप लोग को बता दिया है, अगर लास्ट नंबर 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो इवन होगा. तो यहाँ पे क्या है? 0. तो ये क्या नंबर है?
इवन नंबर। बट इन दिस नंबर, वन डिजिट में जो नंबर है, वंस में क्या नंबर है? वन। तो जो हम लोग ऑलरेडी सीख चुका है, जब हमने बता दिया आप लोग को क्या क्या होना है, ये आएगा क्या उसमें? जो 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर है क्या? नहीं, ये क्या है? 1। दैट मीन्स दिस इज नॉट इवन। क्लियर? नेक्स्ट ऑड। नेक्स्ट ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं? numbers which cannot be divided, by 2 are called odd numbers। ऑड नंबर्स को हम लोग एग्जैक्ट 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 1 रहेगा। तो जिसको भी, जो भी नंबर हो, अगर हम लोग 2 से डिवाइड करने के बाद 1 रिमाइंडर रहेगा तो वो क्या होगा? ऑड नंबर। एग्जाम्पल देखिए आप लोग। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, etc. ये सब, these numbers we cannot divide by 2। एग्जाम्पल एक देखिए, 3 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा इसका? 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या हो गया? 1। फिर 7 को देखिए, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1। फिर 19 को देखिए, 2 9 जा 18, 1 इज रिमाइंडर। अगेन 23 को देखिए, 2 12 2 1, so 11 10, रिमाइंडर 1। What's the point? So इसमें देखिए रिमाइंडर 1 1 1 1, लेकिन इवन नंबर में क्या था? रिमाइंडर 0 0 0। तो जिसका रिमाइंडर 0 होता है वो इवन, और जिसका रिमाइंडर क्या होता है? 1 होता है, तो वो क्या होता है? ऑड। क्लियर? इसमें 1 भी है। 1 3 5 7 9 11 13, ये सब क्या होता है? रिमाइंडर 0 नहीं होता है 2 से डिवाइड करने से। देखिए, और हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, इसको पेयर में भाग में, जैसे हम आप लोग को बर्ड्स बना के दिखाया था। 1 1 बर्ड्स को हम लोग किसे पेयर करेंगे? पेयर नहीं होता इसका। फिर 3 का देखिए, 1 2 3, 1 पेयर है, 1 बच गया। फिर 11 का देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये ग्रुप ये ग्रुप ये ग्रुप ये ग्रुप, मतलब पेयर, सब पेयर्स हो गया, लेकिन एक बच गया, तो ये क्या होता है? ऑड। तो ऑड नंबर कैसे पता करेंगे हम लोग? जैसे इवन को हम लोग अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 रहने से इवन बोल के हम लोग को पता चलेगा, लेकिन ये ऑड को कैसे पता करेंगे हम लोग? ठीक उसी तरीके से, अगर इफ the numbers ends in 1 3 5 7 and 9, then these are odd numbers। अगर
कोई भी नंबर हो, अगर लास्ट में एंड में मतलब 1, 3, 5, 7 और 9 रहेगा तो क्या होता है? ऑड। 6, 8, 9, 2, 1, 468,921, ये क्या होगा? ऑड होगा। क्यों ऑड होगा? क्योंकि लास्ट में क्या है? 1। क्लियर? एग्जाम्पल में हम लोग बताया है। फिर 3, 4, 6, 8, 9, 3, लास्ट में क्या है? 3। सो 3 है, इसलिए ये क्या होगा? ऑड होगा। क्लियर? इसी जितना भी दुनिया में जितना भी ऑड नंबर है, देखिए सपोज 1, 7, 9, 11, जितना भी ऑड नंबर है, और दो ऑड नंबर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा? हमेशा इवन होगा। देखिए 1 + 3 कितना होता है? 4। तो दो ऑड ऐड करने से कितना होगा? 4, इवन। क्लियर? फिर 5 + 7 कितना होगा? 12। 9 + 11 कितना होगा? 20। सब इवन नंबर है, 4, 12, 20 सब। तो ये याद रखिए, जो भी ऑड नंबर है, दो ऑड नंबर को ऐड करने से हम लोग को हमेशा इवन नंबर मिलेगा। और एक बार भी याद रख सकता है हम लोग, कोई भी ऑड नंबर हो, अगर उसके साथ 1 प्लस करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? क्या होगा वो नंबर? इवन। ऑड के साथ 1 प्लस करके इवन, और इवन के साथ 1 माइनस करके ऑड बनाया जाता है। क्लियर? थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। तो प्राइम एंड कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं और कैसे पता चलेगा आपको कौन सा प्राइम है, कौन सा कंपोजिट है? ये मैजिक टेबल हम लोग को बता देगा। दिस इज वन मैजिक टेबल। नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम दिस सेल। ये नीचे के सेल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सपोज यहां पे 1, 1, 1, 1, 1, 1, सब 1 लिखेंगे हम लोग फर्स्ट में, क्योंकि हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से 1। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। फिर 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Next 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 left. From here to. फिर 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2 left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Leave it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Leave it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Leave it. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. जितना बड़ा बॉक्स होगा उतना अच्छा है, बहुत सारा नंबर्स आएगा। अभी देखिए आप लोग 1, इसमें कितना है? सिर्फ 1 है। इसमें कितना है? 2 में 1 and 2, 3 में 1 and 3, 4, 1, 2, 4, 5 में 1 and 5, 6 में कितना कितना है? 1, 2, 3, 6, 7, 1 and 7,
8 में 4 2 1 8, 9 में 9 3 1, 10 5 2 1, 6 10। यहां पे अगर 7 होता तो यहां पे हम लोग यहां पे 12 आ जाता, 10 11 12 यहां पे होता, यहां पे 11 आता, ये 11 होता, फिर ऐसे ऊपर जाएगा हम लोग का। अभी इधर बॉक्स नहीं है बल्कि हम लोग मतलब यहीं तक करेंगे, ठीक है। उधर हम लोग का प्लेस नहीं है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा फिर आप लोग को। अब देखिए, अगर आपको कोई बोलेगा 10 का फैक्टर्स क्या क्या है, तो 10 का फैक्टर्स हम लोग क्या क्या है बोले से फैक्टर्स क्या है हम लोग को ये पता करना है फर्स्ट में। व्हाट इज फैक्टर? हम लोग को पता है फैक्टर। फैक्टर क्या है? Factors means exact divisor. Exact divisors are the factors of the नंबर्स। मतलब कोई भी नंबर्स का फैक्टर क्या है बोले से एग्जैक्ट डिवाइजर। वो फैक्टर से हम लोग उस नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड कर सकते हैं। सपोज 10 का फैक्टर्स क्या है? 5 2 1। ये नंबर से अगर हम लोग 10 को डिवाइड करेंगे, देखिए एग्जांपल, अगर 10 को हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे, 1 10 जा 10, रिमाइंडर 0, एग्जैक्ट डिवाइड किया है। फिर 10 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 0। या फिर 10 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0। सो 10 का फैक्टर्स क्या है? 10 का फैक्टर्स क्या है? 5 है, 2 है, 1 है। और कुछ नंबर है क्या जो 10 को डिवाइड करने से 0 रिमाइंडर रहेगा? नहीं। दैट मीन्स 1 2 5 आर द फैक्टर्स ऑफ द 10। 10 का फैक्टर्स क्या है? 10 है, 5 है, 2 है, 1 है। इज इट क्लियर? ठीक उसी तरीके से 4 का फैक्टर्स क्या है? 4 का 4 2 1, 4 2 1। 1 से अगर 4 को डिवाइड करेंगे, 1 4 जा 4, 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 4 से करेंगे 4 1 जा 4, रिमाइंडर 0 रहेगा सब में। फिर 3 का फैक्टर्स क्या है? 1 एंड 3। 2 का फैक्टर्स क्या है? 2 एंड 1। 1 का फैक्टर्स क्या है? 1 का फैक्टर्स है नहीं, क्योंकि 1 सिर्फ एक है। अब हम लोग यहां से हम लोग देखेंगे कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा कंपोजिट नंबर है। फैक्टर्स पता चल गया। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अबाउट द फैक्टर्स। फैक्टर मीन्स द एग्जैक्ट डिवाइजर। फैक्टर मीन्स व्हाट? द एग्जैक्ट डिवाइजर। अब देखिए, जिसका फर्स्ट में हम लोग यहां पे लिखेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स जिसका फैक्टर्स ओनली 2 होता है। क्या होता है? 1 एंड दैट नंबर इटसेल्फ। 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, दीज आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। अभी यहां पे देखिए, यहां से और यहां तक हम बोलेंगे आपको 10 तक देखेंगे हम लोग। अगर कौन सा नंबर है जिसका फैक्टर सिर्फ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ है, तो क्या है? 2 का 2 और 1, 3 का 1 एंड 3, फिर 5 का 1 एंड 5, और 7 का 1 एंड 7, और है 10 तक नहीं है। तो ये सबको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है? 2 है, 3 है, फिर 5 है, 7 है, ऐसे करके 11 भी होगा, क्योंकि 11 का भी क्या होता है? 1 और 11 सिर्फ है ना। फिर 13 अगर होगा तो यहाँ पे 13 आएगा, 13 का भी 1 एंड ऐसे होगा। व्हाट द पॉइंट? सो दीज आर प्राइम नंबर्स। सो डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे अभी।
numbers which have only two factors. Factors मतलब exact divisor. Two factors. One and the number itself. ये क्या है? वन एंड द नंबर इटसेल्फ. सपोज थ्री प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका क्या है, ओनली टू फैक्टर्स है. थ्री का फैक्टर्स थ्री ऑलरेडी है और वन, इसको प्राइम. फिर टू का क्या है, वन एंड टू. द वन एंड द नंबर इटसेल्फ, टू का फैक्टर्स नंबर इटसेल्फ टू है ना. तो अकॉर्डिंगली ऐसे मतलब जिसका वन और द नंबर इटसेल्फ होता है फैक्टर्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स मीन्स द नंबर्स विच आर हैविंग ओनली two factors, that is one and the number itself. Clear? Now next, composites. Composite number. Composite numbers. कंपोजिट नंबर्स किसको कहते हैं, जिसका फैक्टर्स टू से ज्यादा होता है. दैट मीन्स नंबर्स which have more than two factors are called composite number. कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, टू से ज्यादा होना है. which have more than two factors. प्राइम में हम लोग टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ बोला था. तो इसमें क्या होगा, टू से ज्यादा होना है, उसको कंपोजिट. नाउ इसी टू वन फैक्टर है, थ्री का सिर्फ टू है, इसका भी दो फैक्टर है, वन एंड द नंबर इटसेल्फ. थ्री का भी वन एंड थ्री इटसेल्फ. फोर का क्या है, वन टू एंड फोर इटसेल्फ. दैट मीन्स टू से ज्यादा है, यहाँ पे दो था, ये से दो से ज्यादा है कि नहीं, वन है, टू है, फिर फोर है ना. तो इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं. फिर सिक्स का देखिए, सिक्स, थ्री, टू, वन, इसमें टू से ज्यादा हो गया फैक्टर्स, तो इसको कंपोजिट. सेवन क्या है, कंपोजिट है क्या, नहीं. क्यों, क्योंकि इसका दो फैक्टर है, वन एंड द नंबर इटसेल्फ. एट का देखिए, एट, फोर, टू, वन, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ एट. कितना है, वन, टू, थ्री, फोर. तो ये क्या होगा, कंपोजिट. क्लियर. प्राइम एंड कंपोजिट नंबर पता चल गया है. अभी एक क्वेश्चन आप लोग का मन में आ सकता है कि वन, टू प्राइम नंबर है, थ्री प्राइम नंबर है, फोर कंपोजिट नंबर, ये सब हो गया क्योंकि इसका टू फैक्टर्स है, इसलिए इसका प्राइम नंबर है. इसका भी टू फैक्टर्स, इसलिए प्राइम. इसका मोर देन टू है, ये कंपोजिट. लेकिन वन क्या होगा, वन का तो फैक्टर्स है ही नहीं. तो वन नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. वन इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट. ओके, थैंक यू.